और इवन इफ कोर्ट केस भी हो ना, कुछ भी हो, ये हमारा जो बाइलॉस है, ये जो बाइलॉस जो लिखित बाइलॉस है, ये हमको परमिट ये नहीं देता है कि एक दिन भी आदि स्टूडेंट्स यूनियन का टेन्योर को आगे बढ़ाए। उसका मुताबिक बोलने से वो लोग का जो एक्सटेंशन था वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो जो है सेल्फ प्रोमोगेटेड में आता है और कुछ भी जो ग्राउंड जो है वैलिड नहीं है। आदि बने तक हम अगम पे प्रेस पेटर्निटी ngoluk hilo ke press conference tomna takam noluk keralo ngo obugao he ngok dunahi tanam taggu be former adisu person be magyar lego former adisu speaker dak last 2022 the loga presiding officer yagrung election adisu he lambu ke dunahi tapir taga be former adisu speaker federal speaker dak akon he dunahi tapung mibang be former adisu person ngo former adisu general secretary hilo ke adi bana keralo media keralo ngoluk media angga laga mo anyong ako nolum lubie adi bana ke banga adi bana dolunga adi institution nolu nolu ngolum angu pe mema peka ngolu he kanam takam he hilo adisu veteran am represent na melokon no adisu lok yena ke dengam represent na ngolu veteran side lo ngolu adu ngolu holok hilok abam hinam de ngolu bylaws lega pe bylaws me violation inam regolo ngolu adu lega hi ke ye to nam delo adisu giding complaint min sila bulu pection ka bo hole kali ila ito deme social media lo viral do deme ngolu 24 september delo ma hi ate kampo mangam ngolu collectively lubo hogela collective views em lang elangol ab ke em letter patto ki deke deke padi suki ding idung nolu hem lega hem kabolangka ai kampo peibo langka ngolu kom talla dugdum adi su itona de inam october 1 tarik de lo adi bane ke bange buluk extended meeting lo ngolum kom tomala ngolu telo ke balo du toka complaint na ke dinga kom ato kangol senior ke dinga kom ato adi bane ke bange kom ato delo kana me arope hupak yebom duna adisu hui buluk tenure expire kai article 14 no lumilo buluk tenure expire kai 28 March 2025 delo buluk tenure hake pe 19 March 2022 delo yagrungalo election ito 28 March 2022 delo vote and affirmation bulu vote taking ito dak irong me period se complete dung 28 March 2025 gikana dela period se complete alangela hilo bulu hupak hilo kalo lumilo 7 months na pe bulu adisu tenure me yeban bomdum the article 14 no kadelo ke ako kuda article 14 article adisu bylaws article 14 clause 2 sub clause a lo hake peludum any self promulgated extension isila agia extension ihila il 3 years tenure kotom rongame il email de adisu de nalen void dem automatically abk delok adisu bylaws deme century dum yeme hupak adisu emla lula adisu hupakai kumang yeme ngolu he adi bana ke bangam hilo ngolu konno ngolu 6 tarik delo ke president ngolu meling name iname adisu election me lagan peibo languka adi bana ke bange lega de adi bana ke bange kera pe kom de kana instance ka tunki adisu adilo de bylaws defect ila adisu adilo de hakana problem ko kala tenure me bien nyebo la ilien ne delo de ke pection ko kala yeme delo adi bana ke bange ala adisu lega ngame ijun botum inam adi bana ke bange me ngoluk appeal nam de hekepe 2008 delo adi students federation kolang all adi students union ko rumgong conference lok irong ame pection ko kata deme 2008 delo ngopok conference lo adi bana ke bange dem pection anji deme dissolve bela adi su hupak ebong hupak adi sum nam heme bul ilen botoku adi students aralo organization anji kamaye pection kamaye emla delo 2009 delo
adi bane ke bange pasika tolo conference ibotoko ifala 2011 delo yebom duna adi su executive hupak ke hake pakpa adi su tenure me yebom kai ilai do deme delo kuda adi bane ke bange interference ilangkula buluk aralo bulu kaing telo adisu election me ibotoko delok base bom dolangulu adi bane ke bange ngulu ludung hupak nulu adisu election me nulu ibolanguta ipala if delo adi bane ke bange dem dulu ibola mamilo ngulu he veteran kidinga ngulu ready dungulu iboiku ngulu adisu election me ngulu iboiku kaila langulu hemnolu mokara pa komlu bitong ngolum political dakan ate isu lo ngolum mematoka ngolum pehsan bin ni bailo se kama imilo ngobuk ga general secretary adisu imai he tanam tagu person imai he tapung bang imai ya hupa kaibam nakidi dekom adisu ilimai holo inko ko di adbotuna adisu bailo solo dem ngolu respect pe lagi him hupa gulu ngolu kanam motekom abuse bomdum bulu hime tenure me boje pe yebo bomdum agem adisu luhila iname him respect dola adisu beten kiding ngolu adisu bailo sem pasai kunam laga pe ngolu hupaga ready dum adi bana ke banganulu ati ko kamilo ila manam ko lula manam ko kala ke limilo ngolu ready dum ngolu adi student union election me ngolu ai kam pape iboiku follow bailo sologa bes bomdola ngok agom holo durian no linkena ko kamilo abe dehu inke to ga dek adi tatken mana dek ke kedi laga pakom dem buluk aying version me he ngok angonge magelu Thank you so much. Thank you, my dear friend. आज हम लोग आदिशु वेटरन जो हम लोग आया है regarding the violation of the Adishu bylaws by the present incumbent headed by Mr. Jirbo Jabo as a president and Ton Boli as a general secretary. तो ये कारण इस ऐसा ये है कि आपका देखिए आदिशु बाइलॉज आर्टिकल 14 क्लोज 2 सब क्लोज ए इसमें क्लियरली लिखा है कि 3 years टर्म खत्म होने का बाद अपने आप खुद वो लोग एक्सटेंशन करने से भी वो नल एंड वॉइड होगा एक्सटेंशन कर सकता है ओनली नेचुरल क्लैमिटीज एंड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस वो समय में एक्सटेंशन कर सकता है लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया है कि एक्सटेंशन होना है तो उसी कारण हम लोग आया है और हम थोड़ा ये करेगा फास्ट जो हम लोग का जो समय में जो हुआ था उसको भी थोड़ा बताएगा इन 2008 उसमें आदि स्टूडेंट फेडरेशन एंड आदि ऑल आदि स्टूडेंट यूनियन एक फ्रैक्शन हुआ था तो अंडर द आदि बाने केबांग एट ngopok कॉन्फ्रेंस उसमें दोनों फ्रैक्शन को डिसॉल्व करके आदि बाने केबांग ने चार्ज को लेके इलेक्शन कंडक्ट कराया हमारा प्रेजेंट जो टाउन क्लब पासीघाट में करा दिया जितना भी जो इलेक्शन कमेटी था वो सब हमारे आदि बाने का मेंबर ही था मुझे याद है हमारा इंजीनियर गयोन टाइम प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आदि बाने का he was also there and then हमारा अबुंग इरिंग द वाइस प्रेसिडेंट द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आदि बाने का उन लोगों के अंदर 2009 में फर्स्ट टाइम आदिशु का इलेक्शन कंडक्ट करके अच्छा से हो गया तो फिर हमारे 2011 में आज का जैसा ही प्रेजेंट इनकम्बेंट ने सही समय पर जब इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराया था तो एक हमारा दोस्त था एडवोकेट अभी एडवोकेट है दुबक टेक सिंह ही इज बिलोंग फ्रॉम क्यों पर्सियन उन्होंने आदि बाने को एक कंप्लेन लेटर लिखा और आदि बाने ने हमारा जो अभी चीफ पेट्रोनशिप एडवाइजर है इंजीनियर गौतम पुरान उसको चीफ इलेक्शन को कमिश्नर बनाया और अभी प्रेजेंट जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है लेओन ताइंग को रिटर्निंग ऑफिसर बना के और उस समय मैं भी मेंबर था हमने काइंग कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन को आदिशु का इलेक्शन को कंडक्ट कराया था और
मैं बताता हूँ कि जितना भी जब भी आदिशु का जो प्रॉब्लम आता है हम लोग शामिल करना ही पड़ता है। मैंने यिंगक्योंग काइंग कॉन्फ्रेंस एंड लास्टली रिसेंटली याग्रुंग कॉन्फ्रेंस में भी मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर था। तो आर्टिकल 14 का मुताबिक बोलने से हमारा जो प्रेजेंट इनकम्बेंट जो है वो लोग का पावर सब खत्म है एज फॉर द बायलॉज। तो इसमें आपका आप लोग को एक कॉपी दिया जाएगा। हम लोगों ने प्रेसिडेंट अदीबाने को 24 सितंबर को एक रिप्रेजेंटेशन लिखा था। तो उसके कारण हम लोगों को 1 तारीख अक्टूबर को हॉर्टिकल्चर ऑडिटोरियम में एक मीटिंग कराया था। तो उसमें भी हम लोगों ने क्लियर कट सीवी जितना भी हमारा बुजुर्ग सीवी का ये अदीबाने का जो मेंबर है उन लोग को मैंने क्लियरली बताया था कि इलेक्शन जो है अभी कंडक्ट कराने का समय पार हो गया, पार हो के अनदर 6 मंथ हो चुका है, 7 months। अभी 7 मंथ्स होने जा रहा है। तो अभी तक हमारा अदीबाने का इंटरफियर नहीं किया है। तो उसी के लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लिखा। फिर उसका 1 तारीख अक्टूबर का मीटिंग होने का बाद भी अभी कितना दिन हो गया कि अदीबाने अभी तक टेकअप नहीं कर रहा है। इसके वजह से आज कल हम लोगों ने फिर एक रिप्रेजेंटेशन लिखा। इसमें क्लियर कट लिख दिया हम लोगों ने कि विदिन 6 डेज के अंदर में अदीबाने कबाम इंटरिम कमेटी फॉर्म करके इलेक्शन कमेटी को फॉर्म करा के अगर इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराएगा तो हम लोग वेटरन जो है इंटरफेयर करेगा, देन विल कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द आदिशु। तो वही है। तो एक गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ कि मैं सुन रहा हूँ कि प्रेजेंट इनकम्बेंट आदिशु जो प्रेजेंट इनकम्बेंट है कि कोर्ट केस के बारे में बता रहा है। तो 1 तारीख अक्टूबर हॉर्टिकल्चर मीटिंग में भी मैंने क्लियर कर बता दिया था कि उसमें स्टे ऑर्डर कुछ भी नहीं है। सदाम तालोम एक एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट, उसने एक टाइटल सूट डाला था सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया है कि जब मैंने कोर्ट ऑर्डर को पढ़ा तो ओनली आफ्टर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द आदिशु वो लोग 6-7 महीने का बाद आदि बेल का जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज आदिशु स्टूडेंट उसके लिए एक इलेक्शन कराने के लिए शुरू कर दिया था। तो वो इलेक्शन को सिर्फ कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दिया था। वो लोग का जो प्रेजेंट इनकम्बेंट का जो आदिशु एग्जीक्यूटिव मेंबर का पूल एंड फंक्शन के लिए कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिए। तो इस चंद शब्दों के साथ मैं अपना प्रेस मीटिंग समाप्त करता हूँ और कुछ क्वेश्चन जो भी हो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये अवसर आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि अभी बहुत सारा रेगुलर चल रहा है और ये आप लोग अभी जो जैसे आपने कहा कि 7 months रनिंग हो रहे हैं इस बार जो आदिशु के इलेक्शन है ऑलरेडी टाइम को पार हो चुका है। तो क्वेश्चन ये रेस होता है कि जब 7 अप्रैल को आदिशु की तरफ से पासीघाट प्रेस क्लब में वो प्रेस ब्रीफिंग दिया था ये जो ईयर एक्सटेंशन का बारे में, तब आप लोग के जो सीनियर टीम की तरफ से क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा जानना चाहिए क्योंकि लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ओके ठीक है। ये सुनिए, देखिए पहले भी हम बता चुका ना कि ये जो जानकारियाँ है जो एक्सटेंशन का, तो तब हम लोग पता चला जब इन लोगों का बीच में 2 फैक्शन का बीच में 2 गोट के बीच में कंप्लेन काउंटर एलिगेशन होने के बाद में हम लोग पता चला। तो मेरा दायित्व ये बनता है कि बीइंग फॉर्मर आदिशु लीडर्स, हमारा दायित्व ये बनता है कि आदिशु में अगर कुछ ऐसे बीच में फैक्शन अगर हो जाता है तो हम उसको यूनिफाइड करने का कोशिश करता है। मैं ऐसा चाहता हूँ और हम सब ये चाहता है कि आदिशु स्मूथ से चले। तब जाके पता चलता है कि दोनों में कुछ टकराव है, एक टेन्यूर को लेके, एक जो है एक्सटेंशन को लेके। तब हम लोग को तब जाके हमने पहले भी बोला कि 24 सितंबर में हमने
एक अर्जी दी है आदि बानेकेबांग को, ये कह के कि आदि स्टूडेंट यूनियन का भीतर कुछ पैक्शन हो रहा है, आप लोग ये चीज़ को आप लोग सुलझाए, आप लोग दोनों जो गोत है, जो ग्रुप्स है, इन लोग आप लोग सुलझाए, पैक्शन होने ना दे। तब जाके आदि बानेकेबांग एक एक्सटेंशन, इन लोग का CEB एक्सटेंडेड मीटिंग में वो मुद्दा को उठाता है और हम सबको भी बुला लेता है। तब जाके हम लोग ये पता चलता है कि जो भी आदि जो एक्सटेंशन है ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है अकॉर्डिंग टू द आदिसू बायलॉस। और इवन इफ कोर्ट केस भी हो ना, कुछ भी हो, ये हमारा जो बायलॉस है, ये जो बायलॉस जो लिखित बायलॉस है, ये हमको परमिट ये नहीं देता है कि एक दिन भी आदि स्टूडेंट्स यूनियन का टेन्योर को आगे बढ़ाए। तो अभी जो भी हम लोग बोल रहे हैं ये आदिसू, ये बायलॉस का मुताबिक से आदिसू का मतलब इन शॉर्ट हमको ये रेस्पेक्ट करना है, आदिसू बायलॉस को हमको रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये आदिसू बायलॉस ने हमें पहचान दी है, हमें नाम दिए, बस इतना ही है। और जो अब जो बोला है वो हम शायद आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जो इन लोग का एक्सटेंशन से ये मीडिया में आया, दैट उसको हम लोग को कुछ ये जानकारी मतलब कोई एवर नहीं था कि इन लोग का बीच में से काउंटर एलिगेशन होने के बाद में हमको ये ध्यान में आया कि ना ये कहीं ना कहीं यहाँ में कुछ प्रॉब्लम है। थैंक यू। सर आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा 2008 में भी ऐसे हुआ, उसको भी IB के आपने सॉल्व किया, तो ये हमारा इश्यू में ही ऐसे क्यों होता है, ये थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या रीजन होता है कि ऐसे हमेशा एक्शन भी करना है, ये कंटिन्यूसली होते रहता है? वो तो मैं बिल्कुल जवाब परफेक्ट जवाब तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स का वो है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट वाला जो इनकमिंग जो है किस कारण से होल्ड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। क्योंकि मेरा ख्याल से मेरा जो दोस्त ओबू गाँव ने बताया कि अब देखिए सेक्शन आर्टिकल 14 में क्लियर कर लिखा है, एनी सेल्फ प्रोमुलेटेड एक्सटेंशन ऑफ टर्म बियॉन्ड 3 years प्रोवाइडेड इन क्लोज 1 of this article or anything done during such self extension from term shall automatically stand null and void. Besides attracting strict social censure of the Adishu and Adibani. And then सब क्लोज बी में आप क्लियर कट लिखा है, आप देखिए, इलेक्शन टू द Adishu shall be conducted before or after expiry of the normal term of peace, वो 3 years है, except on the ground of an unprecedented natural calamities, disaster or similar extremely unavoidable situation beyond human control as may be collectively experienced or known to the general public. तो आपने बोला था कि एक्सप्रेस ब्रीफिंग किया था, उसमें वो लोग ने एक्सटेंशन का बात किया, तो मैंने भी देखा तो जितना भी वो लोग ग्राउंड बताया है वो बिल्कुल ग्राउंड वैलिड नहीं है। एज पर द सबसेक्शन सब क्लोज बी ऑफ सब क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 14 उसका मुताबिक बोलने से वो लोग का जो एक्सटेंशन था वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो जो है सेल्फ प्रोमुलेटेड में आता है और कुछ भी जो ग्राउंड जो है वैलिड नहीं है। सर लास्टली ये भी आपसे क्लियर जानना चाहेंगे कि जब जीरो जामो अंडर लीडरशिप ऑफ जीरो जामो की तरफ से जब दाम का बारे में ही उन्होंने कदम उठाया, चार वो जो उनका चार्टर डिमांड था उनको लेकर कदम उठाया, तब ही उसका जो वैल्यू है उसको गिराने का कोशिश किया जा रहा है, ये भी कह रहा है। देखिए ये एक कन्फ्यूजन होने लायक सिचुएशन है। अभी हम लोग जो आज बोल रहे हैं आपको आप पहले बता चुका है, ये बायलॉस का हम लोग बायलॉस को लेके ये है। रही इशू का बात, जो आदिशु ने प्रेजेंट आदिशु ने जो इशू उठाया है, जो भी मुद्दा उठाया, उससे हम लोग को कोई मतलब वो नहीं लेना देना है नहीं, और वो इशू हम लोग के लिए रिलेटेबल नहीं है। ये इशू में आदिशु बायलॉस ब्रेकडाउन होना और इन लोग कुछ इशू उठाना, ये एकदम बिल्कुल अलग अलग ये मुद्दा है। बहुत लोग का ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, शायद कल को सोशल मीडिया में भी ट्रोल करेगा कि इसका वजह से ये है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। किसी चीज़ को लेके आप उस बहाना से आप चीज़ को आप वो क्या बोलता है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। द फैक्ट रिमेन्स दैट इन लोग का जो टेन्योर है वो 28 मार्च 2025 में एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद में इन लोग कुछ भी कदम उठाया होगा दैट विल स्टैंड नल एंड वॉइड।
और रही जो डैम का बात है, रही जो एंटी डैम प्रो डैम का बात है, इस विषय में हम वेटरन को कुछ नहीं बोलना है।